Hello, students. I am Dr. Anand Tripathi. The person who is talking to you has experience of about 22 years, 20 years in Vidyalankar. I'm also part of Vidyalankar Institute of Technology. That's my college. And before Vidyalankar came in my life, I was professor at Bombay University. So we are talking about BCom. The first module of BCom actually gives a slight introduction that what is BCom, and then we start with something called as noise and Fourier transform. Actually, I don't like teaching noise and Fourier transform, so I delay that particular process because it's all mathematics. And this mathematics, unfortunately, when I say about Fourier transformation, the mathematics in Fourier transformation belongs to semester 5, that is Fourier transform and its applications. Basically, it is slightly different. So it is slightly on the higher side. We'll talk about this. I love mathematics because BCom is full of mathematics. We will talk about signals and all everything. So nothing to worry about. The first is introduction. In introduction, I'm going to cover what is modulation. मैं और आप ये जो बात कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं, ये क्या चीजें हैं. Like so far as your information technology, first thing is what is information technology? That should be first talked about. So I have Abhinandan with me. Abhinandan, can you tell me what is information technology? Come on, Abhinandan, come on. Sir. Hello. When I say Abhinandan, it is not Abhinandan, it's my entire class. And I like my class to be talkative. Please talk to me. I like people talking to me. Please unmute yourself, everybody. Yeah, Abhinandan. What is information technology? Hello, sir. Yeah, I'm there. I'm audible, sir. Yes, you're audible to me, son. Information, which will be helpful for us. No, what is information technology? Any technology is helpful, guys. Not to worry about. Every technology that we are going to study is helpful. But your branch is information technology. So I just want to know what is information technology. What is meaning of information technology? Sir, the data that we process is called information, and the technology related to that data is called as information technology. Something better than this? Am I said keep talking to me, guys. जितना आप मुझसे बात करेंगे मैं उतना आपको समझा पाऊंगा. Farhan Khan? Sir, any technology that processes any raw type of data into something useful information is information technology. Kashish beta. Kashish, which college you are from, Kashish? Pillai College, sir. Achha, many of them are from Pillai College. I have my friend from Pillai College. His name is Dr. Arun. Arun, yeah, he's a physics faculty. Yeah, I know him. मेरे अच्छे मित्र हैं. Okay. बेटा ये जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, this is what is information technology. So information transmitted using technology is called as information technology. Who am I? I'm your transponder. Who are you? You are my receiver. So I am talking, you are hearing. You are talking, I am hearing. It's vis-vis. It is vis-vis. Vis-vis technology. Means one side I'm your transponder, other side your receiver. Once you start talking to me, you become my transponder and I become your receiver. So basically, जैसे कि हम लोग क्लासरूम में होते हैं, क्लासरूम में क्या हो रहा है? क्लासरूम में एक कम्युनिकेशन हो रहा है between a teacher, between me and between you and me. That is between you and me. So this technology, where you are sitting in front of me, now also we are sitting in front of each other, but this is something different. I'll tell you about this. Give me some time.
But now when I'm saying that, when in class, this is online, we say we are in COVID situation and this COVID situation is called as new normal. ये मुझे एक नया technology मिला है, new normal. Okay, whatever, it's funny. I don't like that. What is new normal? जो हमारा पहले की स्थिति थी, जहाँ की मैं क्लासरूम में पढ़ता था और मेरे सामने आप लोग बैठा करते थे, मैं आपको देखता था, आप मुझे देखते थे, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, where no technology has been used. From the source to the receiver. So when you are talking, you become source, I become your receiver. So हमारे बीच में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था. But at present, I am sitting in Thane. I forgot the name of the girl. She stays somewhere close to Pillai College. Nerul में है, Panvel में है. There's a difference. There's a lot of distance between you and me. I cannot see you, you cannot see me. Rather, we are seeing each other through some kind of technology involved between us. So this sharing of knowledge, this sharing of information between you and me is called information technology. Come on, come on, come on. Did you get this? Yes, sir. Yes. So this is what is information technology. और ये जो हम पढ़ने वाले बच्चों, ये जो जनरली आपने इलेक्ट्रॉनिक्स भी कभी न कभी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा. सो जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं और जो हम क्लासरूम में कर्व्स दिखाते हैं, भाई ये कर्व्स है, ये फला फला कर्व्स है, लेकिन इसी चीज को जब हम लैब में दिखाते हैं तो आप कहते हो सर देयर इज अ वेरिएशन अमंग देम. आंसर इज यस, देयर इज अ वेरिएशन. बट दिस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही खूबसूरत है बच्चों, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू हियर, exactly what I'm going to teach you is what will be visible to you. धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टेक्नोलॉजी में, जितना आपको समझ में आता जाएगा, जब हम बात करते जाएंगे बहुत ज्यादा, then what the all you will understand, you will find that there's a lot of variation. There's a lot of variation between what you have seen the other side of electronics and the electronics you are going to see here. So मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वही चीज आपको practically भी नजर आएगा. So keep talking to me. That's what I said. Just keep talking to me. The maximum we talk to each other, the maximum knowledge we gain. And so far as your modules are concerned, module number 1 I told you, module number 2, module number 3 is AM receiver, module number 4 is FM and FM receivers. FM is frequency modulation. So basically मैं आपके सब पास में एक word use करने वाला हूं, modulation. Modulation. So फिर से वही सवाल चलो क्रिएट होता है. I saw my friend's name, Benjamin Lobo. Benjamin, are you there with me? Am I audible to you? Okay. Devdutt, am I audible to you? Hello, Vaibhav, am I audible to you? Yes, yes, sir. No, the guys are not responding. Ashad? Ananya Vichare? Yes, sir. Yeah, keep talking to me, Ananya. Keep talking to me. Keep talking to me. Yes, sir. Farhan Khan? Yes, sir. Yeah. So the question is, modulation किसे कहते हैं? What is modulation? जैसे कि हम लोग कुछ स्टार्स को देखते हैं, कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, तो एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल रहा है. So, sir, the change of voice. Yes, son. The change of voice. Basically, this is what I'm talking to you. What you can hear me, I can hear you. It's just we are talking to each other. But if I change my voice relative to someone, कि मैं अमिताभ बच्चन की आवाज से बात करने लगा, जैसे मेरे मित्र आपके साथ में है, उनका नाम है वैभव, मैं उनकी आवाज से आपको बात करने लगा, तो इसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन. मींस मॉड्यूलेशन का बेसिक मतलब होता है क्रिएटिंग अ चेंज इन समथिंग इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन. तो आपको मैंने पहला कंसेप्ट सिखाया है बीकॉम का. दिस विल बी अ मेजर टेक अवे फ्रॉम टुडेज लेक्चर. व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन का बेसिक मीनिंग इज चेंज, क्रिएटिंग अ चेंज. Okay, so first question, I'm writing your first question, guys. The first question is, explain
basic block diagram of electronic communication. This question comes of 5 marks as well as it comes of 10 marks. दोनों ये सवाल पूछा जाता है. It can be part of your question number 1, or otherwise if it comes in question number 2, 3 and thereafter it will come of 10 marks. So if it comes in question number 1 it will be of 5 marks. If it comes otherwise it will be of 10 marks. So बच्चों मैं start कर रहा हूँ. I'll take your permission to start with. Shall I start, guys? Come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा बच्चों आपको, आप मुझसे जितना बात करेंगे उतना मैं आपको टेक्नोलॉजी सिखा पाऊंगा, उतना चीज आपको मैं बता पाऊंगा. बट ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू आस्क मी. द फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम इज कॉल्ड इनपुट ट्रांसड्यूसर. जैसे ये मेरा मोबाइल है, इसमें मोबाइल विजिबल टू मी, Yes, sir. सो जब मैं ऐसे रखता हूँ, एक्चुअली मोबाइल मैंने ऑफ कर दिया है कि बार बार डिस्टर्ब करेगा आपको. जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो यहाँ पर मेरे एक इनपुट है. ये क्या इनपुट है? यहाँ पर क्या इनपुट है? माउथ पीस जिसको हम बोलते हैं, माइक्रोफोन. दैट्स नाइस. सो व्हाट इज जॉब ऑफ माइक्रोफोन? सो ये जो मेरा पहला इनपुट ट्रांसड्यूसर है, my first input transducer is mic. The next, क्योंकि मैं लैपटॉप पे ले रहा हूं, is my keyboard. The third that I'm going to use is, you know very well, आजकल आपके ये बहुत काम आता होगा, joystick. So what is transducer, guys? What is transducer? Yeah. Something that converts mechanical input into electronic format. Beautiful, sir. Don't give a name. जैसे आपने बोला electronic input. हाँ, it is not electronic input. मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या है basically? ये voice signal है बेटा. ये voice signal है. So transducer is a device that converts one form of signal. I'll give it one more name. Energy to another form. Okay. अब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा पहला बेसिक रिक्वायरमेंट इज माइक. तो जब मैं कहता हूं मेरा इनपुट ट्रांसड्यूसर इज अ माइक, व्हाट इज द सिग्नल? बच्चों, इस सिग्नल को बेसिकली हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? Voice. क्या कहते हैं? Voice. वॉइस कहते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं डालूंगा. हमारा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई पड़ता है, हमें मतलब मनुष्यों को जो सुनाई पड़ता है, क्या फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई पड़ती है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमें क्या सुनाई पड़ती है? 20 hertz to 20 kilohertz. 20 Nice. hertz to 20,000 hertz. 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. क्योंकि यही चीज अगर आप कहें, मैं ये तुरंत कहने वाला था कि ये गलत है, एक्चुअली टेक्निकली ये गलत है, लेकिन फिर भी हमने बचपन से आपको यही पढ़ा है कि आपको 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक की चीजें सुनाई पड़ती है. एकदम सही है. ओह, लगता है मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं. तो कंफ्यूज करने में तो मजा है. सो दिस इज 20 hertz and it goes up to 20 kilohertz that goes at 20,000. It's one and the same. Lekin guys, I need to correct you today. Add you, not correct you. Knowledge add hota hai, kabhi bhi correct nahi kiya ja sakta. This is
it goes from 30 hertz and it maximum goes up to 15 kilohertz. ये है बेसिक आइडिया। अब ये जो 30 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज है, लेट मी टेक एन एडवांटेज, लेट मी टेल यू मोर समथिंग, क्योंकि इसकी बार बार मुझे जरूरत पड़ेगी और मैं ये बार बार आपको बताने वाला हूं। 30 hertz to 300 hertz. This is example of horn. किसी भी तरह का हॉर्न जब हम बजाते हैं, हॉर्न जब बजाया जाता है, क्यों हम लोग जनरली कहते हैं यार हॉर्न मत बजा यार, क्यों हॉर्न बजा रहा है, लेकिन हमें कुछ लोग हमारे में है वैसे लोग जो कि हॉर्न बजाने में बड़ी मजा आती है उनको। हाँ, तो ये जो हॉर्न है, इट गिव्स राइज टू मेंटल ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं, and is very very irritating. So when you say horn, इसका प्रॉपर्टीज है very high intensity, and very irritating. इरिटेटिंग का स्पेलिंग क्या है बच्चों? IRRATITNG। स्पेलिंग गलत है बेटा। ओके, वाला RI इरिटेटिंग। जाओ दे बड़ा भावना पूछनी ना। अरे समझा कि नहीं समझा भाई, बोलो तो सही मुझसे। यस सर। हाँ, Yes, बस sir, बस we इतना ही जरूरी है understood. बेटा, इतना ही जरूरी है। नाउ जब मैं बात करता हूं, मैं अभी मेरे एक मित्र आपके साथ में है, उनका नाम है वैभव। व्हेन ही टॉक्स, आप हमारी दोनों की आवाज में आपको लगेगा कि जब वैभव भाई बात करते हैं तो उनकी आवाज भारी है और मेरी आवाज उनसे थोड़ी सी सॉफ्ट है। सो नाउ आई टॉक बिटवीन 800 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज, इसे हम कहते हैं वॉइस। ऑल्सो व्हेन आई से 3 किलोहर्ट्ज, इसे मैं स्पेशल मार्क कर रहा हूं, we call it men's. And when you talk about women's, wow, our women's can talk up to 5 kilohertz. Got this, come on. Yes sir। Yes, sir. हाँ, तो इसमें अंतर क्या है? ये आपको बताना है। ये थोड़ी ना कि ऐसे ही लिख दिया है तो आप समझ जाएंगे। नहीं, आप बताइए मुझे कि मैंने ऐसा क्यों क्रिएट किया, ये औरतों का है, ये आदमियों का है, ऐसा क्यों कहा मैंने? Come on, there should be some difference. अच्छा, let me call someone. I don't know if I have names available at present. Okay. Nitish, are you there? Yes, sir. Suppose ऐसा हो कि आप अपनी किसी मैत्रीण को फोन किए, योर अ फ्रेंड हु इज अ गर्ल, और उसके पिताजी ने फोन उठाया, तो आपको पता चलेगा कि आपकी मैत्रीण ने फोन उठाया है या उसके पिताजी ने फोन उठाया है? Yes, sir. कैसे पता चलेगा? Voice difference रहेगा। Voice difference, yes. जब हम कहते हैं, जैसे कि हमारे एक बहुत ही अच्छे सिंगर हुआ करते थे, क्लासिकल सिंगर, उनका नाम है मन्ना डे साहब, वो गाना गाते हैं, लगा चुनरी में दाग। Now this song he can sing up to 3 kilohertz, that is highest music octave. लेकिन यही जब हमारी लता मंगेशकर जी कहती हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, now she can sing up to 5 kilohertz. This is what is difference between men and women. कहने का अर्थ यह है कि जो औरतों की आवाज जो होती है वो मधुर होती है। ये जो मधुरता है, come on guys, are you able to understand what I'm saying? I'm talking about the quality, I'm not talking about quantity. ये जो मधुरता है, ये जो लड़कियों की आवाज में जो मधुरता है,
This is what 5 kilohertz frequency. Now, अब आप बोलेंगे सर आवाज मधुर है लेकिन बोलती कड़वा है. We can discuss on this. We can have lot of arguments. We can talk on this later. लेकिन ये है. So जब हम voice कहते हैं, voice frequency starts with 0 hertz and goes maximum up to 3 kilohertz for men's and can go up to as high as 5 kilohertz for women's. Got this? आगे चलूं मैं? Yes, sir. आगे चलते हैं. Girls, no harm, please. This is beat frequency, beats, beat, and we talk about tabla here. And this goes up to, I'll use technical terms now. This goes up to 6 kilohertz. Guys should understand I am entering into music frequencies. Next is flute. This goes up to 9 kilohertz. Then comes another very beautiful thing. We call it strings. Strings. This goes up to 15 kilohertz. So when you are saying up to the maximum value, guys, the maximum value, we always talk about the maximum value. The maximum value इसे हम कहते हैं FM. I'll talk about it later on. So this is what is a split frequency right from 30 hertz to 15 kilohertz. So 3 to 30 hertz, 300 hertz, 30 hertz to 300 hertz is very irritating, very high intensity, and basic answer is horns. Men's voice goes up to 3 kilohertz, whereas women can speak up to, speak or sing, jaisa bhi aap bolna chahiye, it's all one and the same for me, can sing up to 5 kilohertz. Tabla from minimum is 0, क्योंकि तबला जब बज नहीं हो रहा है तो 0 frequency emit कर रहा है, and can go maximum up to 6 kilohertz. Similarly, flute can go up to 9 kilohertz, and strings, जब आप strings की बात करते हैं तो बच्चों ये गिटार है, जल तरंग हुआ, सितार वादन हुआ, वायलिन हुआ, these all can emit frequency as high as 15 kilohertz. Got this? आगे चलूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये बच्चों में ये बार-बार सवाल आपसे पूछता रहूंगा. जब भी म्यूजिक बजेगा तो कितना फ्रीक्वेंसी है, तो विल टॉक अबाउट दिस. उसको हम लोग एक स्पेक्ट्रम का नाम देंगे. विल टॉक अबाउट दिस. आगे चलता हूं मैं. So voice. So basic part is voice. आगे बढ़ते हैं बच्चों. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? इसे हम बेस बैंड, इसे हम बेस बैंड्स कहते हैं. बेस बैंड, फिर से एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस. बेस बैंड सिग्नल, वॉइस सिग्नल को हम बेस बैंड भी कहते हैं. लेकिन हम इसे कब कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है. बेसिकली जो मैं बोल रहा हूं वो वॉइस है. बेसिकली जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं उसे हम बेस बैंड भी कहते हैं. लेकिन ये कब कहते हैं? जब मैं और आप एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तब इसे मैं बेस बैंड सिग्नल कहूंगा. आगे चलो. कीप टॉकिंग टू मी. Yes, sir. Yes, Bass sir. band signal means there is no mediator. I am not involving any kind of technology between me and you. Is called bass band signal. Got it? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या हो रहा है? मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं. हमारे बीच में टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं. The next technical word used is क्या बोलते हैं इसे हम? पढ़िए क्या बोलते हैं इसे? Band pass. बैंड पास. यस, बैंड पास. और हम इन सबको, तीनों को बेसिक बुलाते हैं. मैं कैपिटल वर्ड्स में लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. पढ़िए बच्चों, मैं नहीं पढ़ूंगा इसे. Modulating signal. तो आपका सबसे बड़ा चीज ये है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसको बोलते हैं.
तो जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं, या इफ आई स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, everything that you hear is what is called modulating signal. Come on, got this? Yes, sir. Yes, sir. Now assume that कि आप घर में बैठे, जैसे मैं घर में बैठा हूं, मेरे सामने एक डॉल पड़ी है, क्या बोलते हैं उसको, टेडी बेयर पड़ा हुआ है। तो जो मैं ये देख रहा हूं, ये जो विजिबल सिग्नल है, इसे भी कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। गॉट इट? Yes, sir. मतलब मदर नेचर में आपको जो भी दिखाई सुनाई पड़ता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मदर नेचर में आपको जो भी दिखाई सुनाई पड़ता है, वो सब कुछ क्या है? Modulating signals. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड 300 हर्ट्ज, इसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। FM 3 किलोहर्ट्ज वॉइस सिग्नल, इसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। 5 किलोहर्ट्ज, इसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। 6 किलोहर्ट्ज तबला, आउटपुट ऑफ तबला इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। फ्लूट का जो आउटपुट है 9 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रिंग्स का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 15 किलोहर्ट्ज और उसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। गॉट दिस? Yes, sir. So I'm talking about voice. I'm talking about voice. So बच्चों, यहां पर जो हम इस जगह पर जो हम बात कर रहे हैं, इस जगह पर जो हम बात कर रहे हैं, जो माइक है, माइक कन्वर्ट्स voice signal, voice input, this is your input, voice signal into electrical signal. Electrical signal is then converted into electromagnetic signal. Then it is possible electromagnetic signals are further converted into laser signals. एक जो आपके लाइफ का इस समय जो आपके लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी कॉल जियो फाइबर। सुना है ऐसा कुछ? फाइबर सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, Optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर, वेरी ब्यूटीफुल बेटा। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। The next. The next. इसे हम कहते हैं we call it transmitter. Transmitter. The first part of transmitter is amplifier. The next is called filter. The next is called oscillator. So guys, आप अपने घर में बैठे हैं, I am available to you either on your mobile or I am available to you on your laptop. और अगर आप घर में आपके वाईफाई है, अगर आपके घर में वाईफाई है, then the signal is through air. बराबर? Say yes, say no, come on. और जब हम एयर कहते हैं बच्चों, जब मैं एयर कहता हूं या मैं स्पेस कहता हूं, the air around me is called as space. जब मैं इसकी बात करता हूं, it is a poor conductor. It is not a very good conductor. It's a poor conductor. So जब मैं poor conductor कहता हूं, तो ये जो मेरा सिग्नल है which is coming through space, which is coming to me through space, उसका क्या होगा? डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मीन्स उसे हम कहते हैं एट्यूनिएशन। क्या बोलते हैं उसे? Come on.
Come on. Vaibhav, am I audible to you? Yes, sir. सो ये जो सिग्नल जो हम स्पेस में ट्रांसमिट करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा जो स्पेस है इट इज अ पुअर कंडक्टर, उसमें क्या होता है कि सिग्नल जो है धीरे धीरे छोटा होता जाता है, मींस उसको डैम्पिंग इफेक्ट बोलता है। सो किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले, आई अगेन से, एनी सिग्नल बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड इनटू स्पेस इट हैज टू बी एम्प्लीफाइड। फिल्टर क्यों चाहिए? फिल्टर क्यों चाहिए? ओके ओके, अब ये जो मैंने इनपुट पे आपको दो चीजें दी है, इनपुट पे जो मैं आपको दो चीजें मैंने आपको दी है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। हाँ, क्या वर्ड कॉमन है बच्चों? पढ़िए जरा आप इसको पढ़िए। बैंड। बैंड। तो ये बैंड क्या है? ये बैंड क्या है? क्योंकि मुझे आपको फिल्टर का, मैं आपको समझ आइए मेरा संदर्भ क्या है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फिल्टर। मुझे फिल्टर की क्या उपयोगिता है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये बैंड क्या है? Range of frequency. हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, एकदम सही बोला आपने। बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे। ओके, दिस इज ग्राफ ऑफ गेन, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, आप बोल लीजिए क्योंकि आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आपने ए के बारे में ज्यादा सुना नहीं है, एम्पलीट्यूड समझ लीजिए, और ये है फ्रीक्वेंसी। सो अब मुझे ट्रांसमिट क्या करना है बच्चों? मैं और आप जो हम आपस में जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे के बीच में, दिस कैन गो एज हाई एज व्हाट फ्रीक्वेंसी? कमान कमान कमान, आपके 15 स्क्रीन में लिखा हुआ है। किलोहर्ट्ज। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं आपको यहां पर चल छैया 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 गाना नहीं सुना आपको। 3 हमारे किलोहर्ट्ज। बीच में बातें हो रही हैं। बातें का मतलब क्या? यस यस, इट इज 3 किलोहर्ट्ज। कम ऑन सन, डिड यू गेट दिस? बिटिया आपने मुझसे बात किया? कम ऑन। ओके ओके, दिस इज frequency in kilohertz. So I am going to transmit all frequencies right from 0 hertz to 3 kilohertz. Come on, got this? Yes, sir. Now, if you see this, this is nothing but, इसे हम कहते हैं, इसका एक नाम है बच्चों, इसे हम कहते हैं, I'll take this again, I'll draw a straight line. इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पास बैंड। तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसका फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, ये 3 किलोहर्ट्ज के ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा? तो ये क्या हुआ? इसे हम बैंड बोलते हैं। सो दिस इज बेस बैंड। If I am, you are in front of each other without using any technology, and if I'm using technology, the same signal is called as band pass signal, and this graph is called as pass band. अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पीछे से कोई नॉइज आ जाए, हाँ, कमान कमान, गॉट दिस गॉट दिस गॉट दिस। Yes, sir. या मेरे घर में कोई अंदर आए दरवाजे से तो टिंग टोंग करके आए। जब वो टिंग टोंग करेगा तो बच्चों तो म्यूजिक हो गया ना। Yes, sir. Now you tell me, you are interested in my voice or you are interested in that ting tong? Your Your voice. voice. Yes, yes, yes. Thank you for telling me that. क्योंकि कभी कभी दरवाजे से बहुत ही खूबसूरत चीज घर में आ जाती है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो अब ये मान लेते हैं जो चीज अंदर आई है उसका फ्रीक्वेंसी अप टू 5 है। कमान कमान, गॉट दिस गॉट दिस गॉट दिस। Yes, sir. Yes. ये जो मेरा बैंडविड्थ है, ये जो मेरा बैंडविड्थ है, फिलहाल बैंडविड्थ 3K का है, और ये जो नॉइज इफेक्ट आ गया उससे क्या हुआ कि 2 किलोहर्ट्ज का ऐड हो गया, बराबर? कमान कमान कमान। Yes, sir. Why I am saying this? Because we need to talk about something called as पढ़ो। Bandwidth. यस, मेरा बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो 2 किलोहर्ट्ज का जो एडिशनल बैंडविड्थ आया उसमें है क्या? कचरा भरा हुआ है। तो मैंने क्या किया मैंने क्या किया, अब देखिए आप भी बताएंगे मैंने क्या किया।
क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा, हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो क्या किया मैंने, जब बताइए मुझे क्या किया मैंने, क्या किया? फिल्टर लगा के उसको रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा। यस, मैंने इरेज नहीं किया, मैंने इरेज नहीं किया। जैसे कि गर्ल ने बहुत अच्छी तरह उसने जवाब दिया, मैंने इरेज नहीं किया, मैंने फिल्टर लगाया और जो एक्सेस नॉइज था उसे मैंने हटा दिया। ओके, गॉट दिस? यस सर। नाइस बेटा। अब ये जो ट्रांसमीटर है, ये कोई सॉरी वो मैंने पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ था। ये कोई रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है बच्चों। कि क्या रेडियो स्टेशन है? ये जो रेडियो स्टेशन है 93.1 रेडियो RADIO रेडियो मिर्ची का स्टेशन है। और ये रेडियो का मिर्ची स्टेशन कहाँ है पता है आपको? दिस इज इन ऑर्बिट, ये मैं बाद में हटा दूंगा, इन ऑर्बिट मलाड। ये जो मलाड का है, इट इज सिचुएटेड एट 4th फ्लोर। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो क्या रहा है? इस जगह पर इन ऑर्बिट मॉल में 4th फ्लोर पर एक रेडियो जॉकी बैठा है जो आपसे बात करता है। अब आपको ये सिग्नल कहां मिल रहा है? ये सिग्नल जो आप गाना सुनने वाले हैं वो आपको मिल रहा है 93.1 मेगा हर्ट्ज पर। तो ये जो 93.1 मेगा हर्ट्ज है, ये है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ये है आपका क्या है, क्या है? एड्रेस। एड्रेस। एड्रेस है, एड्रेस है। तो ट्रांसमीटर, लेट अस से कि लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं, इट इज 15th अगस्त, मेरे वतन के लोगों, एंड आपको ये गाना सुन रहे हैं। आप गाना कहाँ सुन रहे हैं? अपने घर पर सुन रहे हैं, अपने रेडियो पर सुन रहे हैं, वहां तक मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ये सिग्नल आ कहां से रहा है? ट्रांसमीटर प्रोड्यूस कर रहा है। ट्रांसमीटर ने ये जो सिग्नल है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, ये जो भक्ति गीत है, ये किस एड्रेस पे ट्रांसमिट किया गया है? वो किया गया है 93.1 मेगाहर्ट्ज। कम ऑन, गॉट दिस? यस सर। सो ये जो 93.1 मेगाहर्ट्ज का एड्रेस है, बहुत ध्यान से, ये जो एड्रेस है इज क्रिएटेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड, मार्किया मैंने रेड से, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर। तो मैं इसे हटा देता हूं बच्चों, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। हम इसके बारे में बहुत कुछ बात करने वाले हैं। सो आई रिमूव दिस, क्योंकि ये हमारा कुछ अलग चीज है, ये अलग चीज है। ओके, द नेक्स्ट, I don't know. Now I'm afraid that I'll be fitting this to you or not. I'll get it more closer. Yeah. The next. This is transmission channel. So now what is transmission channel? So guys, I need to start again here. If the signal is electrical, बहुत ध्यान से, मैं जंपर का इस्तेमाल कर रहा हूं. If the signal is electrical, then the channel is coaxial cable. Now, if it is electromagnetic signal, coaxial cable आप लोगों ने देखा हुआ है? Come on. Have you seen coaxial cable in your life? टीवी वाला सर? Yes, बेटा. Yes, good example. Nice example. So जो टीवी वाला केबल आता है वो coaxial cable है. Okay. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के लिए मुझे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए. That is space. और लेजर के लिए मेरी एक प्यारी सी बच्ची थी, उसने मुझे जवाब दिया था इसके बारे में. We call it OFC. Come on, full form. Optical fiber. Yes, optical fiber cable. तो ये हुआ आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल. यहां पर आपको 5 मार्क का एक और सवाल मिलता है
कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम किस तरह के चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं. सो यू गोना राइट अबाउट दिस, गिव अ डिस्क्रिप्शन. एंड यहां पर जब मैं किसी भी सिग्नल को स्पेस में ट्रांसमिट करता हूं या कहीं भी ट्रांसमिट करता हूं, then I am gifted by something very beautiful. Come on. Come on, come on, come on. Noise. 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 Yes, yes. Very beautiful noise. Guys, जैसे कि हम कहते हैं bacteria are omnivorous, viruses are omnivorous, God is omnivorous, present everywhere. So is noise. Noise is also present everywhere. अगर आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं और आपको अच्छे से सुनाई पड़ रहा है और आप ये स्टेटमेंट कहते हैं कि यार माय कम्युनिकेशन वाज नॉइजलेस, अगर ऐसा आपने कह दिया, माय गॉड नहीं कह सकते, अगर ऐसा आपने कह दिया, इसका मतलब आपको भगवान मिल गया, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सो व्हाटएवर यू हियर इज विद नॉइस. ओके, we'll go for the next part. The next. Oops. The next. The next is receiver. So now आप मुझे बताएंगे, जिन लोगों ने मुझे अच्छे से सुना है वो आप लोग बताएंगे कि मुझे इन सब चीजों की क्यों जरूरत पड़ती है. The next. The next. Okay. And now guys, it's your turn. मुझे एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़ती है? जो सिग्नल लो है उसको एम्पलीफाई करने के लिए. ओके. आपने आपके पास, आपने कहा कि आपके पास टीवी है क्योंकि आपने कोएक्सियल केबल देखा हुआ है, आपके पास टीवी है, क्या उसमें आप वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं? कमान कमान कमान. Yes. That's what is the first need of amplifier. So basically एम्पलीफायर का प्रोविजन क्यों किया जाता है ये बताना जरूरी है. एम्पलीफाई करते हैं तो उससे हमारा ऑडिबिलिटी इंक्रीज होता है, ऑडिबिलिटी कम होता है, लेकिन एम्पलीफायर चाहिए क्यों हमको? Now guys, this is my beautiful earth. थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया. हाँ, वो स्पेस जगह कम थी मेरे पास, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही बना दिया. That is my earth. And this communication, if I have a circle here, I have a circle. This communication, इसको मैं अच्छे से अरेंज कर लेता हूं आपके लिए. ये जो कम्युनिकेशन है जिसे हम रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसको मैं रेडियो कम्युनिकेशन कहता हूं. So what I'm saying, I just want to imply that what is need of amplifier. Amplifier क्यों चाहिए हमको? मैं खाली उसका यूज बता रहा हूं आपको. ओके. This is Earth. This is Earth. And this distance between Earth, overhead distance, is 150 kilometers, and it goes up to 350 kilometers. 350 kilometers. 350 kilometers. And the communication is due to what is TIR? Total internal reflection. क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं बेटा? Rodalini sir. Nice.
इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको समझना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स द सिग्नल फ्रॉम अर्थ travels a longitudinal distance of 350 kilometers. This is your transmitter and travels back more than 350 kilometers. I said ये diagonal है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये diagonal है, इसलिए more than 350 kilometers on uploading and 350 kilometers downloading. This is what is your receiver, this is your transmitter. So दोनों के बीच में बच्चों कितना distance cover हुआ है? बहुत ज्यादा distance cover हुआ है, more than 700 kilometers का distance travel हुआ है. Got this? Come on, got this? Yes, sir. Yes, sir. Now, again, I am drawing a graph of amplitude versus distance. बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा. Can you explain me ये क्या ग्राफ ड्रॉ किया मैंने? Come on, be quick. This is, ये जो सिग्नल दिखाया मैंने, ये है बराबर से? यस Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी ऐसा कि आपके साथ में नहीं होता कि आपका जो मित्र आपको सुन रहा है, आपके बगल में बैठा हुआ है और आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपका मित्र बोलता है, अरे सर सूरज ने बोल रहा है, ये नहीं, कमान 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 कमान. Yes, sir. Your close friend, डिस्टेंस ऑफ सेपरेट से 5 मीटर का डिस्टेंस है, 10 मीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में, और वो कुछ बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं पड़ता, यू मेक अ स्टेटमेंट, अरे सूरज ने बोल रहा है यार, ये नहीं. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डैम्पिंग, इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग. तो क्या हो रहा है, जो सिग्नल ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, व्हेन इट कम्स टू द रिसीवर, उसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, वो धीरे धीरे कम हो जाता है. इसलिए इस एम्पलीट्यूड को रिपीट करने के लिए मैंने वर्ड यूज किया, प्लीज गोना टेक वेरी गुड केयर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. रिपीट करने के लिए आई नीड क्या? Amplifier. Amplifier. So second thing, filter is for using removing of noise. और थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेडियो मिर्ची का एग्जांपल दिया था. रेडियो मिर्ची ने किस एड्रेस पे भेजा था? 93.1 मेगाहर्ट्ज पे सिग्नल को ट्रांसमिट किया था. तो अब आप बताइए कि इस सिग्नल को आप किस पर रिसीव करेंगे? Come on guys. ये जो रिसीवर है, it works on a principle of resonance. So तब क्या होगा? Now I set my receiver at 93.1 megahertz and my incoming signal is also at 93.1 megahertz. So यहां पर जो ग्राफ बनता है बच्चों, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ होता है. इसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा. इसे हम इन्वर्टेड बेल शेप ग्राफ कहते हैं. And this is centered at 93.1 megahertz. So transmitted at 93.1 megahertz, received at 93.1 megahertz. So receiver को ट्यून करने के लिए मुझे फिर से आवश्यकता पड़ती है किसकी? कमान. Oscillator. Yes. ऑसिलेटर. अब आपके पास सिग्नल आ चुका है और मैं फिर से मोबाइल उठा लेता हूं और यहां रखता हूं. हाँ, क्या बोलते हो? बरोबर. अरे ये क्या चीज का उपयोग कर रहा हूं मैं यहां पर, जिसको आप ईयरपीस कहते हैं? Speaker. Yes. And you have ended up with another device, the final output device, जिसे हम okay, why did I do that? इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा. Output transducer. So now what is your output transducer? So आपने इनपुट पे क्या लिया है? माइक लिया है. बहुत ध्यान से बच्चों. So your output is nothing but Speaker. yes, beta, speaker.
The next is your keyboard, and your output transducer is monitor. And now the last is your joystick, जो कि आपके बहुत काम आया है during lockdown, और इसे हम कहते हैं क्या? Visual movement. Or some kind of movement. So this is what is block diagram of electronic communication. ये 5 मार्क का भी सवाल आता है और 10 मार्क का भी सवाल आता है. अब आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Come on, have a question. मैंने आपको बहुत फूड फॉर थॉट दिया है बच्चों. अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. नो क्वेश्चंस. मैं आगे चलूं? सर वो सायरन की फ्रीक्वेंसी किस में होगी, कितनी होगी मतलब? बेटा वो 300 के आसपास होती है. फ्रॉम 0 टू मतलब फ्रॉम 30 टू 300 के आसपास होती है. ओके. Come on, Benjamin Lobo, come on. Actually, I had a friend called as Benjamin. That's why the name is very much visible to me. Siddharth Yadav, Tanay Kulkarni, come on everybody. मैं आगे चलूं बच्चों? Yes sir. Yes sir. Okay. अब मैं कुछ आपसे चोरी करने जा रहा हूं. बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन सब बातों के लिए, इन सब चीजों को मैं आपके साथ बार बार बांटता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं लिख के दे दिया आपको तो आप याद करने की कोशिश करेंगे. And if I remove it like this, so you will keep talking to me every time. I'll keep asking. The next question number 2. What is modulation? So this question can be 1 mark, जैसे कि आपका MCQs है, 1 mark or 2 marks. So preferably when we say MCQ, it will be of 2 marks. So how to answer this question? It is a process in which मॉड्यूलेशन का मतलब याद है ना? मॉड्यूलेशन मतलब चेंज करना है. In which amplitude, frequency, and phase of a given signal is varied. तो ये कैसे वेरिड होता है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं. Question number 3. What is need of modulation? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का. नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ये आप कह सकते हैं कि दैट इट इज कमिंग इन योर एग्जाम.
This question is of 5 marks as well as 10 marks. Okay, guys. Okay, guys. Okay. You can unmute yourself. तो बार बार आपको म्यूट अनम्यूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. When you're talking about our Earth, we are not talking about any other galaxy. We're talking about our Earth. In our Earth, on our Earth, which is the most powerful country? Come on, quick answers. फटाफट answers. Time इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे. Russia. Russia is most powerful. America. US. US. Okay. So we'll go with majority. Then who is the most powerful president? Narendra Modi. He is prime minister, not president. Come on. Let me take advantages. क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलने वाला हूँ आपसे. Can I make a statement that Biden is a most powerful president on earth? Can I make this statement? Or I will ask you to allow me to take that particular statement. Come on. Have you accepted that Biden is most powerful? No, sir. लड़की ने कुछ तो बोला यार, बहुत धीरे से बोला. No, sir. अच्छा ठीक है, तो आप ही बता दीजिए मोस्ट पावरफुल कौन है, क्योंकि मुझे एक नाम चाहिए तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा. सर ऐसे बोल नहीं सकते ना. हे राम, अरे तू इंजीनियर है. इंजीनियर का पहला काम होता है बिटिया रानी अजम्पशन. कुछ तो अज्यूम करेंगे हम लोग. रामनाथ कोविंद इज द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट. अरे यार, रामनाथ कोविंद साहब को मैं कैसे गाली दे सकता हूँ? मुझे गालियां देनी है ढेर सारी, आप समझ नहीं रही हो. सर वो चाइना का. सर नॉर्थ कोरिया. नहीं उसमें भी मैं कर लेता हूँ. पावरफुल बोला. मैंने कहा ना, अज्यूम कर लेते हैं कि बाइडेन साहब बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं. सो या पावरफुल बोला बेटा. Okay, forget. Assume it. You don't accept it, you assume it. Now, I say, कि तो खूप म्हातारा झालाय, बावळट आहे, येडा आहे. और ये बात बाइडेन तक, मुझे तो ये गारंटी है कि आप लोग या मेरे मित्र बैठे हैं वहां पर, वैभव साहब, वो भी सुन रहे हैं शायद मुझे, ये लोग तो ये बात बाइडेन को नहीं बताएंगे. गारंटीड है मुझे, नहीं बताएंगे. बिकॉज वी आर इंडियंस, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पहला स्टेटमेंट यही लिखा है, ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर. टेंशन नहीं है मेरे को. सो वी कैन मेक दैट स्टेटमेंट. अज्यूम कीजिए कि जिस कंट्री के पास इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी है, वो मेरी ये बात, मैं जो ये बोल रहा हूं, ये बात उसके तक क्यों नहीं पहुंच सकती. मैं यहां स्टेटमेंट देता हूं, वहां वो बात उसके तक नहीं पहुंच सकती. मैं ये कह रहा हूं नहीं पहुंच सकती, तो ये बात उसके तक क्यों नहीं पहुंच सकती, इसका मैं आपको पहला प्रूफ देने जा रहा हूं. पहला प्रूफ दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रूफ दूंगा, इसलिए मैं पहले हर स्टेप के लिए जगह छोड़ दूंगा. ये मैं फर्स्ट स्टेटमेंट है आंसर का. सो आई विल कीप इट एज इट इज. सो गाइस, व्हाट इज लैम्डा? Lambda is equal to C upon F. पूरा मैथमेटिकल प्रूफ दे रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा. What is C? It is 3 into 10 raised to 8 meters per second. And frequency, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपसे और क्योंकि मैं आदमी हूं, my frequency will be 3 kilohertz. Say yes. Come on, say yes. Yes, sir. Yes, sir. Now, after I cancel this, how much will I get? अरे ये क्या लिख दिया? सॉरी बेटा, थोड़ा एरर आ गया लिखते वक्त. हाँ, ओके. सो कैन आई से द डिफरेंस इज 10 raised to 5? से yes. Yes, sir. It is 10 raised to 5. It is 10 raised to 5 meters. So this will be 100 kilometers. Say yes. Come on, say yes. अरे 10 raised to 5 को कन्वर्ट किया यार. बराबर. हाँ ठीक है, 100 kilometers. Now
इसको हम बेटा शॉर्ट NT लिखते हैं, किसी किसी किताब में इसको हम ANTT भी किए हैं। तो इसे कहते हैं हाइट ऑफ एंटेना। Height of antenna is given by lambda by 4 and answer is 25 kilometer. Come on, have you got this? Yes, sir. This size of antenna is practically impossible. The biggest antenna is available at Shanghai and the size is 125 meters. Got this? Yes, sir. Come on, got this? This is practically not possible. इसलिए आप घर पे बैठिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत कीजिए, और आपको जितना मन चाहे आप किसी भी व्यक्ति को गाली से सकते हैं, क्योंकि उसे सुनने के लिए जो एंटीना चाहिए वो है 25 किलोमीटर, which is practically not possible. तो अब मैंने क्या किया, अब मैं अपनी प्रेयसी से बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब अपने मैं प्रेयसी से बात कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरी आवाज उसके तक पहुंचे। बहुत ध्यान से, फिर से लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू C/F। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये जो एंटीना है, मैं रेड में मार्क करता हूं तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये एंटीना का हाइट मुझे कम करना। गॉट इट? कम ऑन, गॉट इट? Yes, sir. एक काम करते हैं, हम लोग C का वैल्यू कम कर देते हैं, because lambda is proportional to C. Come on, keep talking to me. Lambda is proportional to C, तो मैं C का वैल्यू कम कर दूं। सर C का वैल्यू कैसे कम फ्रीक्वेंसी होगा? बढ़ाएंगे। Yes, you can make a statement, सर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। एकदम सही बेटा। So answer is 3 into 10⁸. अब मैं क्या करूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं? Yes, sir. Yes. मैं फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकता हूं? मेरा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज 3 किलोहर्ट्ज, और आप मिस हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 किलोहर्ट्ज है, तो अंडर नो पॉसिबिलिटी दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी रेज्ड। गॉट द आइडिया? कम ऑन। Yes, sir. लेकिन मैं कुछ करता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से, लेकिन मैं कुछ करता हूं और ये कुछ करने से द न्यू वैल्यू इज नाउ इनटू 10⁵. गॉट इट? Yes, sir. Yes. ओके, 10⁵ में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। Let me take more advantage. 10⁶, and now it is 10⁻, forget, we'll answer it, 100 meters. Got it? And now the height of antenna is lambda by 4, and it is just 25 meters. And the antenna which is at Worli, जिसको हम दूरदर्शन एंटीना कहते हैं, the size of that antenna is 70 meters. Is 25 meters much lesser than 75 meters? Yes. Yes, sir. This, ये जो मैंने प्रोसेस किया है बच्चों, बहुत ध्यान से, ये जो मैंने प्रोसेस किया है इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? Modulation. Modulation. सो अब मैं कुछ चीजें फिर से लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, पढ़िए क्या लिखा था इसको? Modulating frequency. कम ऑन, मैंने लिखा है कुछ, पढ़िए। जो मैं बोल रहा हूं उसे क्या कहते हैं, जो मेरी आवाज आप सुन रहे हो उसको क्या बोलते हैं? Modulating frequency. बस बेटा, ये हमेशा याद रहे आप लोगों को, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या चीज है जो मैंने रेड में लिख दिया, वो क्या चीज है, उसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना हमको। इसे कहते हैं, पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, Carrier frequency. कैरियर। बहुत ध्यान से, कैरियर। सो ये जो कैरियर है, मैं एकदम सिंपल स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, will carry, पढ़ते जाइए, will carry Modulating signal. यस। तो ये जो 3 × 10⁶ है, ये मैंने एक सिग्नल जनरेट किया है।
जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लेकर बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा. सो योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज your first requirement is reduces height of antenna. ये आपका पहला चीज. Number 2. Let me come back to you again. Okay. Now, Kashish, are you there? Kashish, are you there? Yes, sir. कशिश, अब आप ये सोचिए, बहुत ध्यान से, बाकी सारे बच्चों ये समझिए मैं क्या करने जा रहा हूँ. मैं एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो कृपया आप मुझे ध्यान से सुनिए और उसका जवाब दीजिए ध्यान से. कशिश, ये अज्यूम करते हैं कि आपके घर पर एक पोस्टमैन आने वाला है. बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ. पोस्टमैन आने वाला है, शायद वो आपका लेटर लेके आ रहा है या कोई पार्सल लेके आ रहा है, इररिस्पेक्टिव व्हाट. आप बहुत ध्यान से बोलेगा जवाब मुझे. अब ये जो पोस्टमैन आपके घर में आने वाला है, इसको पूरा प्रोसेस में एक प्रोसेस क्रिएट कीजिए और उस प्रोसेस को फटाफट एक्सप्लेन कीजिए. ट्राई कीजिए. कम ऑन, विल हेल्प यू. वी आर देयर टू पुल यू. So first, the postman will take the parcel he's bringing. Then he'll check the path, how he's coming, like, okay, right, and the route, and he'll reach the destination and he'll give it to me. मतलब घर पे आपके मतलब सीधा अंदर घुस जाएगा, वो दरवाजा खोल के बैठेगा. नहीं, मतलब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला भाई सब कुछ. डोरबेल, इट्स ऑब्वियस कि डोरबेल बजा के. नहीं, मैंने बोला ना कि मैं आपको हेल्प करूंगा और मैं आपको गोइंग टू पुल यू ऑफ. तो मैंने क्लियर बोला था भाई, मैंने तो कोई गड़बड़ की ही नहीं है. अच्छा, चलिए सवाल का जवाब दे दीजिए. जब वो घर में बजाएगा, बेल बजाएगा, तो क्या आपके मोबाइल में कभी कभी बेल बजता है? टिंग टिंग टिंग. नोटिफिकेशन. अरे नोटिफिकेशन. कमान. सो एक नोटिफिकेशन हुआ. ठीक है, एक नोटिफिकेशन हुआ. सेकंड क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा. अरे कशिश, आपके घर में एक व्यक्ति आ रहा है, बारिश का सीजन है, घर में आएगा तो क्या आप चाय पाणी भी नहीं पूछेंगे क्या? चलो जाने दे, हे माणूस की आहे ते आपण नंतर बोलूया, असं संदर्भात आपण खूप बोलूया आपण. ओके, द सेकंड क्वेश्चन, वो जो पार्सल लाया है उस पर कोई एड्रेस है या नहीं है? है ना. आपके घर का एड्रेस है या पड़ोसी का है? मेरे घर का. वेरी गुड. तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पड़ोसी का पार्सल आपको दे दे या आपका पार्सल पड़ोसी को दे दे, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, बहुत ध्यान से. ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बहुत मैंने कुछ नहीं बोला, कशिश याद रहे, आप ही सब बोल रही हैं. तो मतलब बच्चों, कशिश का पोस्टमैन इतना स्पेशल है कि खाली कशिश के लिए ही पार्सल लाया है. कम ऑन. सर मतलब वो पहले से ही इज फिक्स्ड. वो एक्सचेंज कैसे करेगा? नहीं, तो अच्छा, मतलब एक्सचेंज नहीं हुआ है ना? नहीं. और आप ही का नहीं, उसमें बहुत सारे लेटर्स लाए या बहुत सारे पार्सल लाए, उसमें से एक आपको दिया है? हाँ, जो मेरा है वो. हाँ, ऑफ कोर्स. रूल नंबर 1, उसके पास बहुत पार्सल है बच्चों, लेकिन वो कशिश का पार्सल ही कशिश को दिया है. सो बेसिक पार्ट इज, उसके पास बहुत सारे पार्सल है, लेकिन ये जो सिग्नल है, पार्सल इज नथिंग बट सिग्नल. सो दिस सिग्नल इज अवॉइडेड, इट इज मिक्स्ड, बट द थिंग्स रीच प्रॉपर डेस्टिनेशन. मतलब मैंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया जिससे कि अदला बदली सिग्नल का नहीं हुआ है. इसे कहते हैं अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स. जैसे कशिश ने बताया कि उसके पास बहुत सारे सामान थे, उसमें से एक सामान इसको कशिश को निकाल के दिया है. इसका मतलब है उसने बहुत सामान को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, जिसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं. और वो बहुत सामान से, कशिश बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत सामान से एक निकाल के कशिश को दिया. बराबर. कम ऑन कशिश. यस. दिस इज डीमल्टीप्लेक्सिंग. गॉट इट? यस. कशिश, ऐसा तो नहीं है, प्लीज बच्चों अदरवाइज मत लीजिएगा. मैंने कहा ना, मैं एक टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा हूं. कशिश, ऐसा तो नहीं है कि वो जो लेटर आपको मिला है वो पड़ोसी ने भेजा है?
ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मुझे नहीं पता, मतलब कोई भी भेज सकता है, इट डिपेंड्स। मैं गरीब व्यक्ति, इतने दूर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे कशिश, अगर पड़ोसी को लेटर देना है तो वो पोस्ट क्यों करेगा? वो बोलेगा ना ये कशिश लेटर, ये लेटर ले लो 2 साठी। इसका मतलब मे इसका अर्थ निकालते हैं हम लोग, अर्थ निकालते हैं इसको, अनर्थ नहीं करते, इसका अर्थ निकालते हैं। अर्थ ये हुआ कशिश दैट ये जो पोस्टमैन है वो कहीं दूर से सामान आपके लिए लेके आ रहा है। कमान कमान कमान। यस। So can we say it is long distance communication? Yes. It is long distance. अब बच्चों एक ऐसा चीज, एक गेम खेलते हैं कशिश, क्या ऐसा हो सकता है, अज्यूम करते हैं, मैंने कहा ना वी आर इंजीनियर्स, वी अज्यूम लॉट ऑफ थिंग्स, कि मैं भी आप ही के बिल्डिंग में रहता हूं और पोस्टमैन आता है, मैं पोस्टमैन को 50 रुपए चिपकाता हूं, आपका लेटर खोलता हूं, पढ़ता हूं और आपको लाके दे सकता हूं, मतलब वो पोस्टमैन वापस आपको लाके दे सकता है। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। एनीथिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस, वी टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अब क्या है, कशिश को जो ये मेल, जो कशिश के पास जो मेल आया है और ये जो रिप्लाई देना चाहती हैं, इसमें इंस्टेंट होना चाहिए, एकदम इंस्टेंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कशिश को, कशिश आपको जो मेल मिला है it is via email and you also send the email, in that case it will be encrypted, end to end encryption रहेगा उसमें? Yes. So this is digitalization. Come on, come on, come on. Yes. Yeah, you need to pay for technology, but this is basically digitalization. So what ये जो हमारे बीच, मेरे और कशिश के बीच में जो निष्कर्ष निकला है उसका ये है, आंसर मैं कर रहा हूं, helps in removals, ये सब कुछ helps है, helps in long distance। कशिश बेटा समझ में आया? Yes. नंबर 3, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी ये आपका अपना पोस्टमैन को बचा के रखिएगा, और पोस्टमैन को अजीबत चाय पानी देने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू डोंट नीड हिम। आई टेल यू हाउ यू डोंट नीड हिम। दूसरा क्या था? avoids mixing of signal, बराबर, helps in muxing and demuxing number 5 with digitization reception and transmission can be come on, say yes, come on guys, come on everybody, got this? Yes sir. अब ये जो मैंने 5 स्टेप लिखा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने 5 स्टेप लिखा है, अगर आप इसी तरह से लिखते हैं, दिस विल बी 5 मार्क क्वेश्चन। एंड ये जो आपने जस्टिफिकेशन दिया है, विद दिस जस्टिफिकेशन, डोंट क्रिएट स्टोरी ऑफ पोस्टमैन, योर टीचर विल नॉट गिव यू मार्क्स। ये जो जस्टिफिकेशन आपने क्रिएट किया है, विथ जस्टिफिकेशन, this will come off how much? Got it? 10 marks. 10 marks. अब कुछ बताना जरूरी है बच्चों, ये थोड़ा ऊपर जाते हैं हम लोग। सो ये जो कशिश का पोस्टमैन था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पोस्टमैन था, उसे हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेस, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। ये मैं क्वेश्चन
रेड में लिखता हूं। ये जो क्वेश्चन 3 है इसे मैं फिर से लिखता हूं। डिफाइन, DEFINE, डिफाइन मॉड्यूलेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, और ये हो सके तो आप भी पढ़िए इसे। इट इज अ प्रोसेस in which amplitude, frequency, and phase of carrier signal, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, carrier signal of order of hundreds of kilohertz, also known as रेडियो फ्रीक्वेंसी। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं। ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स किलोहर्ट्ज, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी is varied with instantaneous amplitude of modulating signal of order of 30 hertz to 15 kilohertz. Got it? अब ये जो मैंने स्टोरी बनाई थी बच्चों, ये जो मैंने स्टोरी बनाई थी, ये जो मैंने कैरियर लिखा है, बहुत ध्यान से बच्चों, ये जो कैरियर है, कैरियर का काम क्या होता है? कैरियर का काम है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को कैरी करना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरी करना। से यस, ये हमने पहले ही बात की हुई है। कमान कमान कमान। यस सर, यस सर। स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर भी मैंने लिखा हुआ है, कैरियर फ्रीक्वेंसी विल कैरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है? यस सर। यस सर। मेरे और बीच में जो हमने बातें की थोड़ी अबाउट द पोस्टमैन, तो पोस्टमैन कर क्या रहा था? पोस्टमैन एक मैसेज डिलीवर किया कशिश को। कमान कमान कमान। यस सर। So this message is called modulating signal and the postman was carrier. Got the idea? यस सर। अब मुझे कशिश आप ये बताइए कि आपको पोस्टमैन में इंटरेस्ट था या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में। उल्टा बोलते हैं। कशिश से सवाल फिर से पूछता हूं। कशिश, whether you were interested in the postman or you were interested in the parcel? Parcel. Yes. So आप पोस्टमैन को घर पे चाय नहीं पिलाएंगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, because he is not required. His job was to deposit the material with you. So this is what is the basic answer. So जब आउटपुट पर होते हैं आप, आउटपुट पर आपको सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, कैरियर पर नहीं. So now I am going to give you another example. ये जो बच्चों मैंने छोड़ के रखा है आपके लिए, ये जो छोड़ के रखा है, एक मिनट, कलर चेंज, फ्लोरोसेंट डालता हूं मैं. ये जो है बच्चों, ये है आपका कैरियर सिग्नल. गॉट इट? यस सर। This is your carrier signal. And now I'm going to add something.
तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको? यहां पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पढ़िए पढ़िए, क्या मिलेगा? वॉइस। इनपुट पे क्या दिया था आपने? वॉइस। आउटपुट पे क्या मिला आपको? वॉइस। इसी में तो आप इंटरेस्टेड थी, बीच का प्रोसेस अजीबात बगायसा नहीं। बट दैट इज ओनली ट्रू फॉर लेमैन। लेमैन मुझे समझ लो ना, नॉट इंजीनियर, लेमैन। गॉट इट? यस सर। सो एज इंजीनियर ये प्रोसेस जिसको समझ में आता है, जो इस प्रोसेस को जानता है, इसको बोलते हैं टेलीकॉम इंजीनियर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें बच्चों कुछ भी डाउट है? क्योंकि अच्छा फिर से, ये जो मैं बोल रहा हूं आप जो सुन रहे हैं, इसको कौन सा सिग्नल बोलते हैं? मॉड्यूलेटिंग। एकदम सही, एकदम सही। इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। और इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है? 0 से 3 या 4 किलो 3 किलोहर्ट्ज। बेटा अगर मैं यहां से गाना गा रहा होता तो भी आपको गाना सुनाई पड़ता था ना? यस सर। कमान 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 कमान। तो इसका मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो वैल्यू है वो है 15 किलो हर्ट्ज। और 15 बोले तो मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, और एक फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है बैंड, और बैंड का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 15K। गॉट इट? यस सर। What is the lowest value of the band? What is the lowest value of the band? 0 0 0। Yes, yes। लेकिन बेटा मैं 0 के बारे में कभी भी बात नहीं करूंगा, मैं हमेशा 15 के बारे में बात करूंगा। तो जब मैं ये कहता हूं कि तबला का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज 6 किलोहर्ट्ज, सो व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? 0 0। लेकिन 0 इज साइलेंट, हमें बात करनी है 6 किलोहर्ट्ज। सो व्हेन आई से दैट माय वॉइस फ्रीक्वेंसी इज 3 किलोहर्ट्ज, इसका मतलब होता है ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 3। 0 to 3 किलोहर्ट्ज। सो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। दिस विल बी ऑलवेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एम आई क्लियर हियर? यस सर। Yes, So, sir. Yes. 15 किलोहर्ट्ज किस चीज का फ्रीक्वेंसी है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। किस चीज का फ्रीक्वेंसी है? Voice. स्ट्रिंग्स का स्ट्रिंग्स। वॉइस नहीं है बेटा, वॉइस तो 3 किलोहर्ट्ज है खाली। Yes, sir. स्ट्रिंग्स का स्ट्रिंग्स का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जिस तरह से हम बोलते हैं कि एक गाना गाते हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, ये एक प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना में वॉइस है, बराबर वॉइस है ना? हाँ यस सर। वॉइस का कितना फ्रीक्वेंसी है? 3K। 3 बैकग्राउंड में तबला भी बज रहा है, 6K। कमान कमान 6K। बैकग्राउंड में फ्लूट भी बज रहा है, कमान कमान 9K। 9K। फ्लूट कितना बज रहा है? सॉरी, स्ट्रिंग पे कितना बज रहा है? 15K। 15K स्ट्रिंग का क्या फ्रीक्वेंसी है? 15K। अब आप मुझे बताइए कि ये जो गाना है इसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 से 15K नहीं नहीं, कमान 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 15K. 15K। आंसर इज 15K। सो व्हेन यू से 15K, उसमें वॉइस भी आ रहा है, उसमें तबला भी आ रहा है, उसमें फ्लूट भी आ रहा है, और उसमें गिटार भी आपको सुनाई पड़ रहा है। हैव यू गॉट दिस? यस सर। यस अब मैं कहता हूं कि मेरा जो बैंडविड्थ है वो कम हो गया, कम हो गया। तो अब मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। 0 to 6 किलोहर्ट्ज, बहुत ध्यान से, 0 to 6 किलोहर्ट्ज, बहुत ध्यान से। क्या 0 to 6 किलोहर्ट्ज में आपको गिटार सुनाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कमान sir. कमान कमान नहीं पड़ेगा कमान 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 कमान। नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा क्योंकि उसकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है ही नहीं उतनी। कितनी है? कितनी है गिटार की फ्रीक्वेंसी? कितनी है बेटा? 15K। 15K नाइस। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ गिटार फ्रीक्वेंसी?
0 तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 0 to 6 भी तो गिटार आएगा ना, बट वॉल्यूम लो रहेगी उसकी। बट 15 पे ही सुनाई देगा ना। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, एक मिनट बेटा 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 बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन था बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन था। मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूं आपके लिए। एम्पलीट्यूड सेम है बेटा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो सकता, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। तो क्या आगे बताइए मुझे आप, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं है बेटा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं है। फ्रीक्वेंसी को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है, क्यों किया है आप समझिए इस बात को, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, 15 किलो हर्ट्ज का मेरा बैंडविड्थ है, बराबर से यस। यस सर। यस। अब मेरा जो कैपेबिलिटी है, ट्रांसमिट करने का जो कैपेबिलिटी है वो घट गया है, वो खाली 6 किलो हर्ट्ज का रह गया है। तो सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या गिटार सुनाई पड़ेगा? आंसर इज यस, यस। तो जब हम म्यूजिक बोलते हैं, आप ये कैसे भूल सकते हैं बच्चों, यू आर ग्रोन अप ना, यू आर पार्ट इंजीनियर। जब हम म्यूजिक बोलते हैं तो हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? सा रे ग म प ध नी, बराबर। यस सर। इसको म्यूजिक ऑक्टेव बोलते हैं, ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक बोलते हैं, सही यस। Yes. यस So सर। when I'm saying guitar is of 15 kilohertz, then गिटार का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है सा रे ग म प ध नी, नी is available at 15K. Come on say yes. Yes. यस Yes, सर। So sir. in that case मुझे सा रे ग, शायद I don't know about that, सा रे ग, ये जो 3 बीट है, 3 ऑक्टेव है म्यूजिक का, वो मुझे सुनाई पड़ेगा, हायर ऑक्टेव नहीं सुनाई पड़ेगा, सिंपल है। Yes, sir. ओके अच्छा एक बात बताए, बहुत बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सब मैंने बोला था ना आपको, मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पता है फिर भी मालूम नहीं है, पता है फिर भी मालूम नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा एक दिन मूड आया कि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और आपने मम्मी के लिए गाना प्ले किया, और जैसे ही गाना बजा आपने फोन जो है मम्मी को लगा दिया, कान पे लगा दिया, मतलब कि जो म्यूजिक सिस्टम है उसके स्पीकर पे लगा दिया। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मम्मी को गाना सुनाई नहीं पड़ेगा क्या? सुनाई देगा। सुनाई देगा। हाँ, अब आपको मैं बताता हूं, ये जो फोन है ना बच्चों, ये फोन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो बैंडविड्थ है, वो खाली खाली 3 किलो हर्ट्ज है, क्योंकि फोन जो है वो गाने के लिए नहीं बना हुआ है। फोन इज मेड फॉर, कम ऑन टॉक टू मी, वॉइस ट्रांसमिशन। यू अंडरस्टैंड दिस? वॉइस ट्रांसमिशन। तो ये जो फोन है, इसका जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है इज ओनली 3 किलो हर्ट्ज, क्योंकि मुझे क्या ट्रांसमिट करना है? वॉइस ट्रांसमिट करना है। लेकिन मैं खुश होकर मम्मी को गाना भी सुनाई पड़ रहा हूं, तो इस गाने में अगर तबला बज रहा है तो तबला भी सुनाई पड़ेगा, फ्लूट बज रहा है तो फ्लूट भी सुनाई पड़ेगा, गिटार बज रहा है तो गिटार भी सुनाई पड़ेगा। लेकिन त्यागे मराठी में म्हण आहे ना, भावना बरोबर पोचली नाही, तो जो गाने का जो फील है, you're talking about the feel, वॉइस बराबर पहुंच रहा है, जो पिक्चर में जो व्यक्ति गाना गा रही है या गाना गा रहे हैं वो पूरा सुनाई पड़ेगा उनको, लेकिन वो जो म्यूजिक का जो फील है that will be restricted. Got it? यस सर। हाँ, तो जो लोअर ऑक्टेव है वो सुनाई पड़ेगा, हायर ऑक्टेव को बैंडविड्थ ने क्या किया? नेचुरली ब्लॉक कर दिया है। गॉट दिस? यस सर। सर अरे ये क्या कर दिया? सॉरी बच्चों, मैंने अपना टैब ऑफ कर दिया। मैं जब तक ये ऑन होता है तब तक आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए और बोलिए। और कोई सवाल है आपके पास? कमान गंधर्वी, कमान कशिश, कमान देवदत्त, सॉरी देवदत्त। You have any questions? या मैं आगे चलूं? वैभव, am I audible? क्योंकि मैंने अपना स्क्रीन बंद कर दिया यार। वैभव, ओके, lost her. सर आप हो मीटिंग में? ओके, हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ, सो गाइस, आज का लेक्चर खाली इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर अप टू 8:30
So this was your first lecture. You need to decide lot of things. तो आप डिसाइड कीजिएगा. नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहेंगे, भगवान तो जरूर चाहेगा क्योंकि मैं भगवान भी बोलने वाला था, आप चाहेंगे तो विल मीट अगेन. और अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आई हैव केप्ट माय पेन डाउन क्योंकि फॉर्चुनेटली स्क्रीन भी क्लोज ही हो गया था. ओके, द स्क्रीन हैज कम बैक. तो अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं. If you have any question, your question will be now answered. Students, you're there? Yes, sir. So you need to ask any questions. You can ask questions, or we close down for the day. चलिए ठीक है. Okay, guys, we'll meet next time.